سے بھی اہم ہے کہ آج ہم اس سیکرمنٹ میں شامل ہونے والے ہیں جس یادگاری میں ہم یہ سیکرمنٹ لیتے ہیں، اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کی یادگاری ہماری نجات سے جڑی ہوئی ہے۔ اس یادگاری کی عبادت کی لنک جو ہے وہ ہماری مخلصی سے ہے، ہمارے گناہوں کی معافی سے ہے، اور جب ہم اس میں شامل ہوتے ہیں تو اس یادگاری کو دہراتے ہیں اور خدا کے اس فضل کی یادگاری مناتے ہیں جو خدا نے پوری امت کے لیے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے سب انسانوں کا فدیہ دیا۔ اس لیے آج کی عبادت ہم سب کے لیے بڑی اہم اور ضروری ہے، اور یہ سیکرمنٹ جس میں ہم آج شامل ہونے والے ہیں، اگر بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں تو عہد عتیق میں بھی 2 سیکرمنٹ تھے۔ پہلا تھا ختنہ اور دوسرا تھا فصح۔ یہ دونوں سیکرمنٹ بنی اسرائیل قوم کے لیے مقرر تھے اور وہ ان دونوں سیکرمنٹ میں شامل ہوتے۔ پہلا سیکرمنٹ جس کا عہد خدا نے سب سے پہلے بزرگ ابراہیم سے قائم کیا اور بعد میں پھر موسوی شریعت میں یہ مقرر کر دیا گیا کہ جس کسی نرینہ بچے کا ختنہ نہ کیا جائے گا وہ بنی اسرائیل قوم میں شامل نہیں ہوگا، وہ اس میں گنا نہیں جائے گا۔ اور اس کے ساتھ دوسرا عہد، دوسرا سیکرمنٹ جو خدا نے بنی اسرائیل قوم کے لیے مقرر کیا، اس کا مطالعہ خروج کی کتاب میں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب مصر میں آخری آفت یعنی 10ویں آفت بھیجی جس میں سب پیلوٹوں کہ جو مصر کے تھے وہ مارے گئے، لیکن اپنی قوم کے ساتھ، بنی اسرائیل قوم کے ساتھ خدا نے ایک عہد باندھا، خدا نے ایک نشان مقرر کیا، اور خدا نے بنی اسرائیل کے لیے یہ ٹھہرایا تھا کہ تم گھر پیچھے ایک برا ذبح کرنا اور اس برے کا خون اپنے دروازوں کی چوکھٹوں پر لگانا، اور جب موت کا فرشتہ ملک مصر میں داخل ہوگا تو جن گھروں کے اوپر برے کا خون ہوگا موت کا فرشتہ اس گھر میں داخل نہ ہوگا۔ اور بالکل منون ایسا ہی ہوا کہ سارے مصر کے پہلوٹے مارے گئے اور بنی اسرائیل قوم بالکل محفوظ رہے۔ اور اس کے بعد خدا نے ان کے لیے یہ عید مقرر کر دی کہ تم پہلے مہینے کی 10ویں تاریخ کو ایک ایک برہ لینا، اور اس طرح سے سال بہ سال ہر سال وہ جب یہ عید فصح مناتے تو اس یاد کو دہراتے تھے کہ خدا نے کس طرح ہمارے باپ دادا کو ملک مصر کی غلامی سے رہائی دی، فرعون کی غلامی سے ہمیں چھٹکارا دیا، فرعون کے جبر و تشدد سے ہمیں کس طرح خدا نے رہائی دلائی، اور یہ ان کے لیے بہت اہمیت تھی اس سیکرمنٹ کی، اس عید کی۔ اور اگر ہم سیکرمنٹ پر لفظ پر غور کریں تو لفظ سیکرمنٹ جو ہے یہ انگریزی زبان کے لفظ سے لفظ ہے، اور اس کے بعد اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ لطینی زبان کا لفظ ہے ساکرامنٹم، اور ساکرامنٹم لفظ جو ہے وہ اس وقت استعمال کیا جاتا تھا جب کوئی رومی سپاہی اپنے سے بڑے افسر کے سامنے اوتھ لیتا تھا، حلف اٹھاتا تھا کہ میں اپنے ملک کے قانون کی پاسداری کروں گا، میں وفاداری سے اپنی خدمت سر انجام دوں گا، اور
جب ہم کسی بھی سیکرامنٹ میں شامل ہوتے ہیں تو اس عہد کو دہراتے ہیں. جب ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو یقیناً اپنا حلف خدا کے سامنے رکھتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں تیرے اس فدیے پر جو تو نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم سب کے لیے مہیا کیا. اور یہ سیکرامنٹ نئے عہد نامہ میں بھی 2 سیکرامنٹ کلیسیا کے لیے قائم کیے گئے. پہلا سیکرامنٹ جو ہے وہ متی کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے مقرر کیا. اپنے شاگردوں سے کہا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ دو. نئے عہد کا جو پہلا سیکرامنٹ ہے وہ بپتسمہ ہے. اور اس کا تعلق اگر ہم عہد عتیق کی کلیسیا کے لیے دیکھیں تو عہد عتیق کی کلیسیا کے لیے ضروری تھا کہ ہر نوینہ بچے کا ختنہ کیا جاتا تھا اور وہ اسرائیل کی قوم میں گنا جاتا تھا. اور نئے عہد کا بپتسمے کا سیکرامنٹ یہ بھی کلیسیا میں شامل ہونے کا ایک خارجی اظہار ہے. اندرونی طور پر جب کوئی تبدیل ہوتا ہے، جب کوئی یسوع کو قبول کرتا ہے تو اس کے بعد خارجی طور پر مسیح کی قبولیت کا اظہار بپتسمے کے وسیلہ سے کرتا ہے. کچھ چیزیں اس میں متنازع ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ بچوں کا بپتسمہ نہیں دینا چاہیے، کچھ کہتے ہیں بالغوں کو دینا چاہیے. بال اس میں 3 قسم کے نظریہ پائے جاتے ہیں. پینتیکاسٹ کا ایک اپنا نظریہ ہے، بیپٹسٹ کا ایک اپنا نظریہ ہے اور جان کیلوریزم کا ایک اپنا نظریہ ہے. ہم اس بحث میں نہیں جاتے چونکہ ہمارا آج کا موضوع بپتسمہ نہیں ہے. ہمارا آج کا موضوع ہے عشاء بانی پاک شراکت، جس میں ہم آج شامل ہوں گے اور اس یاد کو دہرائیں گے. اور یہ یاد کب خداوند یسوع مسیح نے مقرر کی؟ اس کے لیے مقدس متی رسول کا انجیلی بیان اس کا 26واں باب اور 28ویں آیت ہے. جب خداوند یسوع مسیح نے بطور یہودی عید فصح منائی، فصح کا کھانا کھایا اور پھر نئے عہد کی کلیسیا کے لیے ایک سیکرامنٹ بھی قائم کیا، ایک عہد بھی قائم کیا. اور وہ الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. لکھا ہے کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بدہروں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے. میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا اس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں. یہ نیا عہد خداوند یسوع مسیح نے قائم کیا جب وہ اپنا فدیہ دینے والا تھا. جس رات وہ پکڑوایا گیا، پکڑوائے جانے سے پہلے اس نے اپنے شاگردوں کے ساتھ فصح کھائی اور نئی کلیسیا کے لیے، نئے عہد کے لوگوں کے لیے یہ عہد قائم کر دیا. اور اس نے کہا کہ میرا یہ خون بدہروں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے. اور بائبل مقدس کی 66 کتابیں ہیں اور یہ سرخ ڈوری سے بندھی ہوئی ہے اور جہاں سے بھی اس ڈوری کو کاٹے وہاں سے برے کا خون بہتا ہے. یعنی بائبل مقدس میں انسانیت کی بقا، انسانوں کی نجات اس خون سے جڑی ہوئی ہے. اور خدا نے جب بھی انسانوں کے ساتھ کوئی عہد باندھا تو خدا درمیان میں خون کو لاتا ہے. عہد عتیق کی کلیسیا کو مصر کی غلامی سے نکالا تو دروازوں پر برے کا خون لگا دیا گیا اور جن دروازوں پر برے کا خون تھا
वहां मौत का फरिश्ता हरगिज़ दाखिल न हुआ। अब नए अहद में बहुत से हवाला जात है कलामे मुक़द्दस में जो इस बात की शहादत देते हैं कि हमारी मखलसी बैलों, बकरों और बछड़ों के खून से नहीं हुई, बल्कि खुदा के बेऐब बर्रे के खून के सबब से हमारी ये मखलसी मुकम्मल होती है। इसलिए नए अहद की कलीसिया के लिए भी खून को खुदा दरमियान में लाता है। जब नए अहद की कलीसिया के साथ अहद बांधा गया तो इसकी निशानदही खुद खुदावंद यीशु मसीह ने की और हमारे लिए ये मुकर्रर कर दिया गया कि मेरी यादगारी में ऐसा ही करते रहो। और फिर इसकी अहमियत हमारी जिंदगी में क्या है, इसके लिए जानना जरूरी है। अगर आप मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 6वां बाब पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी वजाहत के साथ यहूदियों के सामने ये बात रखी। उसने जब ये जिक्र किया, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 53 आयत में उसने कहा, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा, क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। और जब ये बातें सुनी तो बहुत से लोगों के दिलों पर ठोकर लगी, बल्कि उसके शागिर्द भी लिखा है कि उल्टे पांव फिर गए और उन्होंने कहा कि ये कौन है जो हमें अपना गोश्त खाने को और अपना खून पीने को देता है। लेकिन उसकी अहमियत क्या थी? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है। अब गोश्त और खून पीने का ये मतलब नहीं कि हम मादी तौर पर इन चीजों को खाते और पीते हैं, बल्कि ये तो अलामती चीजें हैं। ये अंदरूनी कबूलियत का एक ज़ाहरी निशान है कि हम ये रोटी और शीरा लेते हैं तो दरअसल उस याद को दोहराते हैं, खुदा के उस अहद को याद करते हैं जो खुदा का अहद पूरी दुनिया के लिए है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हम उस अहद में शामिल हैं। खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमारी निजात मसीह के खून के वसीला से मुकम्मल हुई और निजात के 3 मरहले हैं, जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन और ग्लोरिफिकेशन। इन मरहलों में से गुजरते हुए यानी हम निजात पा चुके हैं, हम निजात पा रहे हैं और हम निजात पाएंगे। इन 3 मरहलों में से गुजरने के बाद निजात का काम पूरा होगा। इसकी जस्टिफिकेशन हो चुकी है कि मसीह का खून गुनाहगारों के लिए बहाया गया। अब तकदीस के अमल से हम अपने आप को गुजारेंगे और उस तकदीस के अमल में से एक अमल यह भी है कि जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है। इसलिए इसमें शामिल होना इंतहाई जरूरी है। ये हमारी रूहानी दृष्टि का बायस है, ये हमारी रूहानी बेदारी का सबब बना रहता है। और जब हम इसमें शामिल होते हैं तो उस अहद को अपनी जिंदगी में हमेशा ताजा रखते हैं। लेकिन इससे हटकर
हमें आज जिस पॉइंट पर खुद भी उस पॉइंट पर जाना चाहता हूँ और आप सबको भी उस पॉइंट पर लाना चाहता हूँ, वो बात मुकद्दस पौलुस रसूल ने करंथस की कलीसिया को बावर कराई। करंथस की कलीसिया को उसने याद दहानी के तौर पर ये बात कही, हम बपतिस्मा लेते हैं या बच्चों को बपतिस्मे के क्रिया से मसीह की कलीसिया में शामिल होते हैं। जिस तरह अहद अतीक की कलीसिया क्या करती थी, बच्चों का खतना कराती थी और फिर फसा मनाती थी और दीगर तमाम ईदें मनाती थी, इबादत में शामिल होती थी। और इसके बावजूद पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया के लोगों को क्या सिखाना चाहता है? हम बपतिस्मा लेते हैं, बड़ा दिन मनाते हैं, ईस्टर मनाते हैं, रोजा रखते हैं और फिर पाठशाला में भी शमूलियत करते हैं, यानी सारे मजहबी तकाज़ों को हम पूरा करते हैं। और यही हाल बनी इस्राइल कौम का था। तो इसके लिए अब पादरी साहब ने आपके सामने ये हवाला पढ़ा है और इसमें एक बड़ी ही अहम चीज हम सब के लिए है। पौलुस रसूल कहता है कि और सब ने उस बादल और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वो चट्टान मसीह था। वो चट्टान जो खुश्क चट्टानों से पानी मुहैया करती थी, उन्हें पानी देती थी। यहाँ पर भी उस रूहानी पानी का भी जिक्र है और जिस्मानी तौर पर भी मूसा खुश्क चट्टानों पर लाठी मारता और खुश्क चट्टानों से पानी मिलता रहा। उन्होंने मूसा का बपतिस्मा लिया। मूसा का बपतिस्मा लेने का मतलब है कि उन्होंने मूसा को अपना लीडर मान लिया। जब यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हैं, बाप बेटे और रूह कुद्दस के नाम पर, तो हम मसीहा को अपना निजात दहिंदा मानते हैं। और बनी इस्राइल कौम ने मूसा का बपतिस्मा लिए से मुराद है कि उन्होंने मूसा को अपना लीडर माना। हम मसीहा को अपना निजात दहिंदा मानते हैं। हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानते हैं, उस पर ईमान रखते हैं। बियाबान की कलीसिया के लिए ये वादा था कि मैं तुम्हें उस मुल्क में लेकर जाऊंगा जहां दूध और शहद की नहरें बहती हैं। बनी इस्राइल कौम तमाम बियाबान में मजहबी रसूमात अदा करती रही और वो शामिल होते रहे। हम भी नए अहद की कलीसिया सारी उन मजहबी रसूमात में शामिल होते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, इशारबानी के सैक्रामेंट में शामिल होते हैं, लेकिन फर्क निकालना है। इसराइल के बारे में लिखा है कि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते रहे, मगर उनमें से अक्सरों के साथ खुदा राजी न हुआ। मजहबी रसूमात अदा करना इंतहाई जरूरी है। मजहबी सैक्रामेंट में शामिल होना जिंदा ईमान की पहचान है। ये सब कुछ करना जरूरी है और बनी इस्राइल कौम भी ये करते रहे, लेकिन अंजाम क्या निकला कि उनमें से अक्सरों पर खुदा राजी न हुआ। बियाबान में रहते हुए खुदा सब कुछ मुहैया करता रहा। 40 बरस तक न कपड़े फटे न जूते टूटे और आसमान से मन देता रहा और फिर खुश्क चट्टानों से पानी पिलाता रहा। अपनी इलाही शफ़क़त का इज़हार खुदा उनके साथ साथ रहकर करता रहा। रात को आग का सोन और दिन को बादल बनकर उन पर साया करता रहा, लेकिन उनमें से अक्सरों पर खुदा राजी न हुआ। खुदा सब कुछ देता है,
खुदा अपना सूरज नेकों और बदों दोनों पर चमकाता है, लेकिन असल चीज क्या है कि खुदा उनके साथ राजी ना होने की वजह मुझे और आपको अपनी जिंदगी में खुद तलाश करना है कि खुदा क्यों राजी नहीं था। सब कुछ देता रहा, खिलाता रहा, पिलाता रहा, मुश्किलात में से निकालता रहा, उनकी दुआ सुनता रहा। जब कभी वो मूसा पर बड़बड़ाते तो खुदा उनकी इल्तिजा को भी सुनता था। हम भी इस दुनिया में रहकर शिफा भी पाते हैं, बरकत भी लेते हैं। सोचना यह है कि हमारे साथ किस मुल्क में ले जाने का वादा किया गया है। हमारे साथ वादा किया गया है आसमान की बादशाही में ले जाने का। हमारे साथ वादा किया गया है नए यरूशलेम में। हमारे साथ वादा किया गया है उस जगह का जहां पर ना भूख होगी, ना प्यास होगी, और ना वहां पर रंजो गम होगा, न वहां पर सूरज की रोशनी की जरूरत होगी, न वहां पर चांद की रोशनी की जरूरत होगी, और वहां पर खुदा का जलाल ही इत्मीनान और सलामती का बायस होगा। लेकिन आखिरी पॉइंट यही है, सब कुछ करने के बावजूद भी अगर खुदा हमसे राजी ना हुआ तो जिस तरह वो वादा किए गए मुल्क में न पहुंच सके, 40 बरस के दौरान वो नस्ल जो मुल्क मिस्र से निकली थी वो बियाबान में ही ढेर हो गई और मुल्क केनान में दाखिल न हो सके सिवाय यशवा और कालेब के, बल्कि खुद लीडर भी उस मुल्क में दाखिल ना हुआ। खुदा ने मूसा को भी पिस्ता की चोटी पर कहा कि यहाँ से चढ़कर उस मुल्क को दूर से देख ले, क्योंकि अब तेरा वक्त पूरा हो चुका है। हमारा नजात दहिंदा मर कर भी जिंदा हो चुका है, आसमान पर है, और उसने वादा किया कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। सोचने का मकाम वही पॉइंट है। अगर हम इस शायरवानी में भी शामिल होते रहे, बपतिस्मे के सैक्रामेंट को भी पूरे करते रहे, हदिया जात भी देते रहे, लेकिन अगर खुदा हम में से अक्सरों पर राजी ना हुआ तो वो भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। इसी बात पर तवज्जो रखनी है कि खुदा हमारी जिंदगी से राजी रहे, खुदा की हमसे सुना रहे। आइए इस अहद के साथ अपनी जिंदगी में ये बात तलाश करते रहे कि क्या खुदा मुझसे राजी है, और इसके लिए जरूरी है कि अपने आप से मुलाकात करें। मुकद्दस दाऊद कहता है कि ए खुदा तू मेरी ख्वाबगाह की भी छानबीन करता है। हमारी सबसे ज्यादा प्राइवेसी हमारी ख्वाबगाह है, और जब अपनी ख्वाबगाह में जाते हैं तो एक अलार्म, एक टल हमारे अंदर बजता है जो हमें आगाह करता है कि फलां कमजोरी तेरी जिंदगी में मौजूद है। उस कमजोरी को ढूंढना है, तलाश करना है और जिंदगी में निकालना है, और ये याद रखना है तब कि क्या खुदा मुझसे राजी है। अगर राजी नहीं तो सब कुछ करने के बावजूद भी बियाबान की कलीसिया की तरह ढेर हो जाएंगे और आसमान की बादशाही में फिर दाखिल नहीं हो सकेंगे। खुदावंद हम सबको अपने कलाम के वसीला से बरकत दे। Thank you for watching this video. Please subscribe and share this video. God bless you.